Hello friends, welcome to Reviews by Chintan. Today I'm going to talk about Homecoming Season 1. Homecoming is an American psychological thriller web television series based on the podcast of the same name, created by Eli Horowitz and Mika Bloomberg, that premiered on 2nd November 2018 on Prime Video. The series was created by Horowitz himself and Bloomberg, who also serve as writers and executive producers alongside Sam Esmail, Shad Hamilton, Julia Roberts, Alex Bloomberg, Matt Lieber, and Chris Gilliberti. Sam Esmail has also directed every episode of the first season, and there are a total of 10 episodes of around 30 minutes each, which stars none other than Julia Roberts. Her character's name is Heidi Bergman, who is also a waiter's caseworker who is employed at a secret government facility, the Homecoming Transitional Support Center. There is Bobby Cannavale as Colin Belfast, the Heidi's supervisor, Stephen James as Walter Cruz, a young military veteran and client of the Homecoming facility, who is eager to rejoin civilian life. There is Shia Wingham as Thomas Carrasco, a bureaucrat from the Department of Defense investigating the Homecoming Transitional Support Center. There is Alex Karpowski as Craig, an employee at the Homecoming facility. And there is Sissy Spacek as Ellen Bergman, Heidi's mother. Now the basic premise of this season 1 is really intriguing and interesting. Heidi Bergman, means Julia Roberts, had been a social worker at the Homecoming Transitional Support Center, a live-in facility run by the Geist Group. The facility ostensibly helped soldiers transition to civilian life. Though why they needed this help is unclear. 4 years later, means in 2022, Bergman has started a new life working as a waitress, but has difficulty remembering her time at Homecoming. So after a US Department of Defense auditor inquires as to why she left Homecoming, Bergman comes to realize that she had been misled about the purpose of the facility. अब इसका जो दोस्तों इसका अगर मैं आपको मेन प्लॉट बताऊं स्टोरी का, तो ये एक होमकमिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूएस के जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी टूर्स करके या जब वापस आते हैं अपने घर सिविलियन लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, उसके पहले उनको यहाँ पे एनरोल करना पड़ता है कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए, ताकि वो सिविलियन लाइफ में आसानी से घुल मिल जाए. एक टाइम पे सिर्फ 18 सोल्जर्स ही इस फैसिलिटी में जा सकते हैं. फैसिलिटी का नाम ही होमकमिंग है. सो जो हाइडी बर्गमैन जो है वो वहाँ की काउंसलर है और वही फैसिलिटी रन करती है. उसका जो बॉस है कॉलिन बेलफास्ट, वो वहाँ पे विजिट नहीं करता, वो सिर्फ फ़ोन पे उसको ऑर्डर्स देता है जो कुछ भी करना है क्या नहीं करना है, उनकी डाइट का क्या प्लान है, डाइट में क्या यूज़ करना है, सब कुछ सब वही उसको बताता है. वो सिर्फ जो है वो उनकी मीटिंग्स, जो भी सोल्जर्स हैं उनका काउंसलिंग करती है और उनकी मीटिंग्स जो है उसको रिकॉर्ड करके अपनी फाइल्स बनाती है. प्रॉब्लम तभी आती है जब उसके बेसिकली जो डाइट प्लान होता है वो 6 वीक्स का होता है. 6 हफ्तों तक जो है उनको रहना पड़ता है सोल्जर्स को इस फैसिलिटी में, और हर वीक में उनको खाने में कुछ डोजेस दिया जाता है किसी चीज़ का. वो कौन सी चीज़ है वो बताई तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ जब आप 6 वीक तक कंटिन्यूसली खाने में खाएंगे तो आपकी जो मेमोरीज है वो धीरे धीरे डिलीट होने लगती है. सो एक तरह से ये हो गया कि उनकी जो भी बुरी मेमोरीज हैं, उनके फ्रेंड्स मर गए हैं या ऐसी कोई भी बुरी मेमोरीज हैं, उसको डिलीट कर देता है. तो और वो कैसे बनता है खाना, उसको भी 4th या 5th एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो वहीं की होमकमिंग के लैब में ही वो जो है इंग्रेडिएंट बनता है, एज इट इज यूज्ड एज अ मेडिकेशन. एंड these soldiers are nothing but used like guinea pigs.
फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन कि क्या उनकी मेमोरीज जाती भी है कि नहीं जाती है। ये एक बहुत ही क्रूअल थिंग है जो जूलिया रॉबर्ट्स मतलब हाइडी बर्गमैन को पता चल जाती है। उसको एक्चुअली तो पहले से पता ही होता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम, उसको ये नहीं पता होता कि वो सब मेन चीज़ें भी भूलने लगते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स हैं कि वो मर भी गया कि नहीं मर गया, राइट। सो फिर 8th एपिसोड के अराउंड एडी बर्गमैन को पता चलता है उसके बॉस के थ्रू कि उनको जो है सोल्जर्स को उस फैसिलिटी पे लाया इसीलिए रहा है क्योंकि उसको उन लोगों को रीडिप्लॉयमेंट किया जाए। दे आर नॉट बीइंग सेंट टू द सिविलियन लाइफ, जो इसका मेन मोटो है। उनको यहाँ पे सारी मेमोरीज को भुलवा के वापिस आर्मी में भेजने की तैयारी हो रही है। जब उनको ये पता चलता है हाइडी बर्गमैन को, तो वो शॉक हो जाती है, वो अपने बॉस के खिलाफ हो जाती है। और ये मूवी, ये जो होमकमिंग जो फ्लैशबैक मूवी चल रही है 2022 में, जो बताई है, आई मीन हाइडी बर्गमैन को कुछ याद नहीं है। वो जो फैसिलिटी वो 4 साल पहले छोड़ चुकी है, वो एज अ वेट्रेस काम कर रही है, और कॉलिन बेलफास्ट उसको वहाँ पे मिलने आता है। जब उसको रियलाइज होता है कि उसको कुछ याद नहीं है, तो वो उसका फायदा भी उठाता है। ही ऑल्सो स्पेंड्स अ नाइट विथ हर। और दूसरे दिन जब धीरे धीरे जब वो उस फैसिलिटी में जाती है हाइडी बर्गमैन वापस, तब उसको सब धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि मैं यहाँ पे काम करती थी और मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, जानबूझ के बहुत गलत किया है। सो उसका एक जो पेशेंट है वॉल्टर क्रूज, उसके वो काफ़ी करीब हो जाती है, और वॉल्टर क्रूज पे जो एक्सपेरिमेंट्स करती है उसको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया है। सो इन दी लास्ट एपिसोड वो उसको पता होता है कि वॉल्टर क्रूज कहाँ पे जाने वाला है। उसको उसके एक रोड ट्रिप के बारे में भी मेंशन किया गया है। ही वांट्स टू गो टू फॉर अ रोड ट्रिप सिंस लॉन्ग, और उसका मैप भी जो है वॉल्टर क्रूज ने हाइडी बर्गमैन को दिया होता है। तो मैप को फॉलो करते करते वॉल्टर क्रूज तक पहुंचती है, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि पहुंच पाती भी है कि नहीं पहुंच पाती, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीवेज, एंड देन व्हाट हैपेंस, दैट्स द एंड ऑफ द एपिसोड एंड द सीजन। लेकिन इस तरह से इलीगली ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, खास करके सोल्जर्स पे। ये एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन होता है एंड में। सो मुझे तो होमकमिंग बहुत मजा आया, देख के बहुत मजा आएगा। आई वुड highly recommend. As far as performances go, what do I say about Julia Roberts? You know, she's a diva. She's an actor par excellence. I'll definitely fall short of adjectives. So Julia Roberts, in all this, I think she's almost in every frame of season 1. So that is also one. I have been her fan since Pretty Woman. So I had to watch this. Anyway, the series was released, season 1 was released in 2018. I happened to watch it now, but better late than never. It's okay, doesn't matter. Performances of all the leading characters is absolutely fabulous. You have to watch it. You have no option. I mean, yes, I mean, see, such kind of themes and unique concepts are very rare, and you can watch them on web shows only. So this is Chintan signing out for now. Stay tuned for more reviews and my channel. I'll see you soon. Bye.